In this video, we're going to explain the importance of styling the hair system. Basically, अगर आपने recently hair system लगाया हुआ है, हम कोशिश करेंगे explain करने के लिए कि styling का importance क्या है, क्योंकि बहुत बार हम first time hair system लगाते हैं और जब कोई technician या कोई stylish style करता है, वो दिखता अच्छा है, but obviously जब आप घर जाते हो, आप सो के उठते हो, तो maybe वो इतना अच्छा नहीं लगता है. So if you're not wearing a hair system, शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप recently आपने ये हेयर सिस्टम लगाया हुआ है तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिए. ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हमने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको आपका नया हेयर सिस्टम रेगुलर बेसिस पे स्टाइल करना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड. सो योर डे वन, अगर आपने इस हेयर सिस्टम अभी पहना हुआ है और आपके हेयर स्टाइलिस्ट ने ये स्टाइल किया हुआ है, ऑब्वियसली उन्होंने स्टाइल करके आपको ये अच्छी तरह दे दिया है. अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इसको ढंग से स्टाइल नहीं करोगे, ये मेसी लगने वाला है. सो डे वन आपने हेयर सिस्टम पहन लिया है और अभी आपको लग रहा रहेगा कि मैं सुबह उठ के आप जब हेयर सिस्टम देखोगे तो शायद वो इतना अच्छा नहीं लगेगा. इसका कारण ये है क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने पहना तो आपके टेक्निशियन ने या एक प्रोफेशनल ने वो स्टाइल किया रहेगा, और अभी इतने सालों से या इतने महीनों से आपके सिर पे बाल नहीं थे और सडनली अभी आपने हेयर सिस्टम लगाया है, तो यू आर गोइंग टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टाइल. यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके पास सब टूल्स हो. जो ड्रायर होना चाहिए, राइट कोम, राइट स्टाइलिंग प्रोडक्ट, लीव इन कंडीशनर, पोर्शन 9. अगर आप ये लिंक पे क्लिक करते हो, हमने एक स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे कौन से आपको प्रोडक्ट्स रखने चाहिए स्टाइलिंग के लिए, वो सब प्रोडक्ट्स के लिस्ट बनाए. So let's begin with all the products that you will need for styling your hair system. You will need a dryer. Don't use the small dryer, that will not really work, which you will probably need every single day once you wash it, once you style it. You will need a dryer to set your hair. You'll need a hairline brush. You can see in the picture that this is the hairline brush that probably you can use. This is just for the hairline area. This is just to give you a little volume in the front. Once you start wearing it, you will see that the hairline goes flat. You got to hold the front hairline and use that hairline brush just to give you a little bounce in the hairline area, so it works very well. So you probably should also have that hairline brush in your kitty. You will also need a wand brush. You should not use the closed toothed comb at all. It will damage the base, it will damage the hair as well. So please make sure you use the wand brush. The bristles are slightly distant. These are white toothed combs, so obviously it's much gentle on the hair base, and it's easier to comb and there won't be as much as hair shedding. Please make sure that you use the wand brush. It's the best brush for these hair systems. Also, over a period of time, you'll realize that the hair is going slightly dry. Now, why it goes dry is because obviously there doesn't have any blood supply. There is no supply there's no nourishment. So over a period of time, the hair will go dry. You will have to use a bit of serum. You can probably use the List Control. You get these serums from L'Oreal, Wella, or if budget is a concern, you can also use the live-on ones and all. These are kind of cheaper. You go to spray water, comb the hair, and then apply a bit of serum so that it adds a little shine to your hair and doesn't look completely dead and dry. You'll need a water spray as well. So every morning you will have to style the hair system, so you need a water spray. First, when you wake up, you'll obviously spray water, and with the wand brush you'll start combing it. So this is one of the most important things. You will need a water spray. Do not try to splash water taking in your hands and all. It will not work. You need the spray so that the water distributes evenly and it will be easier for you to comb the hair. So one of the most important products that probably I like personally, this is slightly expensive, probably the bottle you would probably get it for around 2000 or something, but I think it works very well with the hair system. It's called the Sebastian Potion 9. This is something which is like leave-in conditioner, and this is more like a gel, so it's got conditioner mixed in it, so it keeps your hair in place. If budget is not a constraint, I definitely suggest Potion 9 from Sebastian, and Sebastian is from Wella, so that works very well with the hair system.
Another product, one of my favorites, is the Bonacure. It's a leave-in conditioner. It's from Schwarzkopf. So the Bonacure is like a leave-in conditioner. You can just spray it on every morning, or if you want, if it's convenient for you, you can also carry it with you, and whenever you feel that the hair is going dry, you can just spray a bit. It's more like a leave-in conditioner, so you can keep spraying every time you feel the hair is going dry. It works very well with hair systems. Styling comb. The one that you can see is called the styling comb. Once you're done with the styling, it basically helps to style the front area. It helps to create gaps between the hair. It just styles your hair in a much better way once you use this kind of comb in the front area. Of course, this is optional. It's not that you have to, but if you have it, you'll probably, once you're done with the Wen brush, you can use this as a finishing brush to just style the front in a better way. You can go through the link और description में भी वो link दिया हुआ है. So once firstly you need to have all the possible products जो आपको styling के लिए लगेंगे. अगर आपको लग रहा है मैं water spray करूंगा और वो regular comb use करूंगा तो इससे काम नहीं बनने वाला है. Please take styling as a very important subject क्योंकि अगर style आप सही नहीं करोगे it's going to look like a wig. So please understand that you all need all the possible tools. सब products आपके पास होने चाहिए. और डे 1 जब आपने अभी फिक्स करके हो गया आपका, पहले चीज आप ये करोगे कि वो सिस्टम को वाटर स्प्रे करोगे. वो वाटर स्प्रे बहुत ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, पूरा उसको ड्रेंच नहीं करना चाहिए. वाटर स्प्रे करने के बाद आप वेन ब्रश लोगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, और ये वेन ब्रश से धीरे धीरे करके आगे की तरफ आप कोम करोगे. साइड से भी आगे की तरफ कोम करोगे और टॉप से भी आगे की तरफ कोम करोगे. आगे की तरफ से कोम करने के बाद वापस आप वाटर स्प्रे करके फ्रंट हेयरलाइन को पकड़ के लेफ्ट साइड पे आप उसको वापस कोम करोगे विद वेन ब्रश, और वापस सेंटर लाओगे. वापस राइट साइड पे आप कोम करोगे और वापस सेंटर पे लाओगे. इससे हम क्या कर रहे हैं, वो जो वाटर स्प्रे आपने किया हुआ है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि आपके बाल ने मॉइस्चराइज कर दिया है बालों को, तो इससे वापस वो सॉफ्ट हो जाएंगे. वाटर स्प्रे हम इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि यूजुअली अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे या हाइड्रेट नहीं करोगे, हेयर सिस्टम ऑब्वियसली आपके जो रूट्स होते हैं उससे कट चुके हैं. इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो ब्लड सप्लाई. कोई सप्लाई नहीं है. अगर आपने एक प्लांट उखाड़ लिया तो वो प्लांट को ऑब्वियसली वो धीरे धीरे मरने वाला है क्योंकि उसको कोई भी नरिशमेंट नहीं है. सिमिलरली जो हेयर सिस्टम है वो रियल हेयर है, लेकिन ऑब्वियसली अगर उसको नरिशमेंट नहीं है रूट से तो धीरे धीरे वो ड्राई होने वाला है. तो कमिंग बैक टू द स्टाइलिंग, आपने वाटर स्प्रे करने के बाद सब डायरेक्शंस में कोम करने का है. मेक श्योर आप हमेशा आपका हेयर लाइन पकड़ के ही कोम करोगे. एक पॉइंट पे आपको लगे कि अभी वो मेरा हेयर थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, उसके बाद जो डायरेक्शन में आपको स्टाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट पार्टिंग लेते हो या राइट पार्टिंग लेते हो, कॉन्स्टेंटली आप हेयर लाइन को पकड़ के ऊपर से उसको आप कोम करोगे. ये चीजें इजिली नहीं आएंगी, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा. ऑन अ रेगुलर बेसिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस. इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट इट. यस, इनिशियली इट मे टेक टाइम. आप पैनिक नहीं हुए. फर्स्ट 1-2 दिन या शायद पहले हफ्ता आपको डिफिकल्ट होगा. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल क्योंकि आपको आदत नहीं है. अभी आप धीरे धीरे जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो जो स्टाइलिंग के लिए टाइम लगेगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. हो सकता है फर्स्ट दिन आपको 15 मिनट लगे, नेक्स्ट वीक आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और हो सकता है आफ्टर अ मंथ और 3 मंथ्स यू विल बिकम अ प्रो एट इट, और शायद 3-4 मिनट में आपका स्टाइलिंग हो जाएगा. वाटर स्प्रे करने के बाद और कोमिंग होने के बाद आपको लगेगा कि अभी ये हेयर थोड़े सॉफ्ट है और थोड़े फ्लेक्सिबल है. यू कैन कोम इट इन एनी डायरेक्शन. उसके बाद आप जो भी जैसे भी आपको स्टाइल करना है, हेयर लाइन पकड़ के आप उसको कोम करते जाओगे जो जैसे भी आपको स्टाइल करना है. वाटर स्प्रे और कोमिंग होने के बाद आप, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, आप ड्रायर लोगे. ड्रायर लेके वेन ब्रश से उसको फ्रंट के डायरेक्शन में लाना है
ऊपर ऊपर से कोम करना है और ड्रायर शुड फॉलो द वेंड ब्रश। दिस यू विल डू इट इन ऑल एरियाज एंड ऑल इन द फ्रंट डायरेक्शन। ये चीज आपको वापस प्रैक्टिस करनी होगी। वापस मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये नहीं किया यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट और वो बराबर सेट नहीं होगा और आपको लगेगा कि हेयर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या इट जस्ट नॉट लुकिंग गुड। और वो जो ड्रायर का हीट होगा वो बहुत हाई हीट पे नहीं रहेगा, मीडियम हीट पे आप रखोगे। एक बार ड्रायर से आप कोम करने के बाद आप वापस उसको वाटर स्प्रे करोगे और वापस वो कोम से ऑल डायरेक्शंस में बालों को कोम करोगे। इससे क्या होगा, ड्रायर की वजह से सब क्यूटिकल्स अलाइंड हो जाएंगे और फिर वाटर स्प्रे करके और कोम करके आपको वो एक एक बाल सेपरेट हो जाएगा और इट विल बी इजियर फॉर यू टू स्टाइल इट। आफ्टर डूइंग दिस अगेन यू विल स्प्रे वाटर और आप स्टाइल करोगे और इस बार आपको एग्जैक्टली कैसे करना है वैसे आप स्टाइल करोगे। फॉर एग्जांपल लेफ्ट पार्टिंग या राइट पार्टिंग। हेयरलाइन पे भी वो बाल बैठता रहेगा, आपको लगेगा कि वो बाल ग्लू से चिपक रहा है। आपको वो हेयरलाइन को पकड़ना है और धीरे धीरे बिना वो वेंड ब्रश लेस को या वो बेस को लगने के बिना वो बाल को सेपरेट करने का है ग्लू से और उसको ऊपर की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में उसको कोम करना है। हेयरलाइन के एरिया में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा क्योंकि इनिशियली स्टाइलिंग ऑफ द हेयरलाइन इज नॉट इजी। आपको हमेशा लगेगा कि एक एक बाल चिपक रहा है। दिस इज वेरी नॉर्मल क्योंकि हो सकता है आप सोते वक्त या नहाते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि वो बाल ग्लू को चिपक गया और ऐसा होता भी है। ऐसे टाइम को आपको बहुत ध्यान से एक एक बाल वो टेप से जो बाल चिपके हुए हैं उसको धीरे धीरे बिना वो वेंड ब्रश बेस को लगाए के बिना उसको वहां से निकालना है और फिर स्टाइल करने का है। वंस यू आर हैप्पी कि अभी मुझे ये जैसे मुझे चाहिए है वैसे लग रहा है, वंस यू आर हैप्पी विद इट, फिर आप एक लीव इन कंडीशनर स्प्रे करोगे बोनाक्योर का, लाइक हाउ यू कैन सी इन द वीडियो। ये एक लीव इन कंडीशनर है। इससे क्या होगा, वो बाल थोड़े मॉइस्चराइज हो जाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा वापस। अब अगर आपको लग रहा है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है यू कैन यूज द प्रोडक्ट कॉल्ड पोशन 9। ये एक लीव इन कंडीशनर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। पोशन 9 से क्या होगा, इट विल वे डाउन द हेयर। जो हेयर आपको डेंसिटी लग रहा है, हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम पहनते हो डेंसिटी यूजुअली हैवी लगता है, इट्स नॉर्मल। आपका जब हेयर डैम्प है आप पोशन 9 लगाओगे, बहुत थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स लेके रब करके आपके पाम्स को और उसके बाद आपको हेयर पे लगाना है और उसको थोड़ा आप फ्लैट करोगे। इससे क्या होगा, वो जो डेंसिटी हैवी लग रहा था उससे वो थोड़ा फ्लैट लगेगा। तो आप थोड़ा कम यूज करिए। उसके बाद आप देखिए अगर आपको फिर भी डेंसिटी हेवी लग रहा है आप 2 या 3 ड्रॉप्स और ले लीजिए और पोशन 9 इवनली स्प्रेड करके वापस वेंड ब्रश से आप स्टाइल करिए। आपको वो पोशन 9 से ये बाल स्टाइल रहेंगे। वी स्ट्रांगली सजेस्ट पोशन 9 क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से ये एक बार स्टाइल करने के बाद ये पूरा दिन वैसे ही रहेगा। लेकिन इससे थोड़ा हेयर हार्ड भी हो जाता है क्योंकि ये कंडीशनर बेस्ड है और कंडीशनर यूजुअली स्टाइलिंग प्रोडक्ट में जब कंडीशनर डालते हैं ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसमें आपको ये करना है, अगर आपको वो हार्ड स्टाइलिंग नहीं पसंद तो अनदर ऑप्शन है, आफ्टर यू अप्लाई लीव इन कंडीशनर आप सिरम भी ले सकते हो सकता है आप वेला का सिरम ले सकते हो, सी का सिरम ले सकते हो। बजट इज नॉट एन इशू, आप कैरेस्टास का सिरम ले सकते हो। वो सिरम आपको पाम में रब करना है और इवनली स्प्रेड करना है हेयर में। सिरम का इशू ये है कि यूजुअली सिरम ड्राई हो जाता है 3-4 घंटे बाद। तो अगर आपको थोड़ा हार्ड लुक नहीं पसंद है और अगर आपको चाहिए कि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे तो आपको सिरम लगाना पड़ेगा, बट यू हैव टू कैरी दैट बॉटल क्योंकि शायद 4 घंटे में आपके हेयर वापस ड्राई हो जाएंगे क्योंकि वो पूरा सिरम अब्सॉर्ब कर लेगा। तो आपको उसके बाद वापस थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके फिर आपको सिरम वापस लगाना पड़ेगा। सो सिरम यूजुअली यू विल हैव टू अप्लाई एवरी 4-5 आवर्स। इसके लिए हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि सिरम आप आपके बैग में रख सकते हो ताकि शायद आपने सुबह स्टाइलिंग करके आप निकले हो और बाद में अगर आपको लगता है 2-3 बजे तब ये वापस ड्राई लग रहा है, यू कैन स्प्रे वाटर और अगर वापस आपको चाहिए तो आप सिरम लगा सकते हो। तो यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 इज पोशन 9, एक कंडीशनर बेस्ड स्टाइलिंग प्रोडक्ट है। इससे आपके बाल थोड़े हार्ड लगेंगे लेकिन वो वेट लुक आपको देगा।
तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट वर्क्स वेल बिकॉज बहुत बार हेयर सिस्टम में और आपके नेचुरल बाल में कितना भी हम मैच करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहेगा बिकॉज इवेंचुअली somebody else's hair. So for this, when you apply the portion 9 on your hair and the system's hair, वो टेक्सचर ब्लेंड हो जाता है। तो आप जब पोर्शन 9 लगाओ साइज और बैक और टॉप को, आपके नेचुरल बालों को भी आप लगाइए। अगर आपको हार्ड नहीं चाहिए तो ऑप्शन 2 यू कैन अप्लाई द सिरम। तो आ सजेशन, आप कोशिश करिए कि इनिशियल स्टेज पे आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कैरी करिए। इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप वर्क पे जाते हो तो एक छोटा सा वाटर स्प्रे का बॉटल आप कैरी कर सकते हो, एक वेन ब्रश आपको कैरी करना चाहिए। अगर आप सिरम यूज करते हो तो आप सिरम कैरी करें या स्मॉल बॉटल ऑफ पोर्शन 9। यू मे नॉट लाइक दिस, आपको लगेगा कि ये मैं प्रोडक्ट कहाँ पे कैरी करूं, बट अनफॉर्चुनेटली चॉइस नहीं है क्योंकि हेयर सिस्टम डालने के बाद स्टाइलिंग अगर नहीं करेंगे तो वो हेयर अपना खुद का डायरेक्शन ले लेगा एंड देन यू विल नॉट बी हैप्पी विद द हेयर सिस्टम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कैरी दीज प्रोडक्ट्स, एक वेन ब्रश, एक वाटर स्प्रे छोटा और एक पोर्शन 9 और हो सकता है एक सिरम। So our suggestion, please practice, practice and practice. Do not panic. ये बहुत नॉर्मल है कि आपको लगेगा कि मुझे स्टाइलिंग नहीं जम रहा है, ये सभी का इश्यू होता है। Do not panic. Only way to solve this is practice. If you do not practice, वो एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि ये बैठ रहा ही नहीं है और अच्छा लग रहा ही नहीं है, और आपको फिर एक पॉइंट आएगा आपको लगेगा कि ये हेयर सिस्टम सही नहीं है और मैं निकाल दूं। So please focus on practicing your styling part. अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, within a month you become a pro at it और आपके बाल स्टाइल करने इजीली आ जाता है और फिर कोई इशू नहीं देता है। Some products that you need to stay away from, आपको हेयर स्प्रेज नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं ये नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दैट प्रोडक्ट आपके हेयर भी गिरना चालू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए बहुत ज्यादा हार्श, जो बहुत होल्ड फैक्टर जिसमें बहुत ज्यादा होता है, वो सब प्रोडक्ट्स से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट। वेल, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यूज है रिगार्डिंग स्टाइलिंग, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल आवर एग्जीक्यूटिव्स ऑन 9222 666 111 and we'll be happy to help you. Thank you so much and subscribe to American Hairline. Thank you.